student, welcome back to the Direct Tax Laws and International Taxation series. Today we are going to start with our new chapter called Income Tax Authorities. So before deep dive into the chapter, there are important points I want to point out first, and then we will going to start our chapter. So first thing, this income tax authority chapters, the section range is section 116 to section 130. Out of those, section number 116 and section number 119 are important section where you can expect that examiner will going to ask you some question and which are relevant for your exam. I'm not saying the other chapter, other section are not that important. They have their own relevance, but these chapter are more important for your exam purposes. So the weightage about this chapter is 0 to 4 marks. I know the weightage is not that big, but we are professional, and even 1 marks is what mean for us. So yeah, so 0 to 4 mark what you can expect from here. MCQ आप समझ सकते हो, MCQ आ सकता है एंड थियोरटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ फॉर 4 मार्क्स का आ सकता है, राइट. Last but not the least, focus area where you have to focus in this chapter. While I am teaching you about the hierarchy, about the sections, what area you need to focus more, and what you remember and what you learn, and what uh, yeah. So authority, name of the authority पे आपको फोकस करना है. अथॉरिटीज़ की पावर क्या होंगी उस पर आपको फोकस करना है. और एक हायरार्की किस तरीके से जो हायरार्की फॉलो हो रही है, मतलब कौन से ऑफिसर के नीचे कौन सा ऑफिसर आ रहा है, एंड जो टॉप ऑफिसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. सो ये सारा आपको फोकस करना पड़ेगा, ये आपका फोकस एरिया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग like how I am going to prepare this chapter for you. So I am starting from very basic. I am going to start with an assessment procedure. Why I am starting with assessment procedure? Because for from assessment procedure you will understand what are the responsibilities of every officer in the assessment procedure, like how individual earn income, they have to pay tax on that, how they file ROI, how assessing officer assess that ROI, and how they select that ROI for scrutiny. What is the further process for that? If the scrutiny they have find something unsatisfactory, what is the procedure need to be followed? So everything I'm going to start with very basics, so that you can understand the core of this chapter. Now let's start with our chapter number 2 of Direct Tax Laws and International Taxation series, which is called Income Tax Authority. सबसे पहले हम पढ़ेंगे assessment procedure. So what is assessment procedure? Is a procedure which is followed by CBDT, income tax authorities, to collect tax from individual, and the whole process I will cover here, from how individual earn income to how they tax on them, and how the return selected for scrutiny, and the further process of that. So let's start it. हेयर इज़ आर इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल है जिसकी एज नॉर्मल है, ठीक है, 42 ईयर एज रखी है मैंने, जो कि इंडिविजुअल, एंड ही इज़ अर्निंग इनकम आइदर फ्रॉम बिजनेस, आइदर ही हैज़ अ सैलरी इनकम, आइदर ही इज़ अर्निंग फ्रॉम हिज प्रोफेशन. तो इनकम कहीं से भी आ रही हो वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट ही इज़ अर्निंग सम इनकम जो कि जिसकी जो हमारी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है या फिर थ्रेशोल्ड जो है इंडिविजुअल का वो एक्सीड कर रहा है अगर, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ बेसिक एग्जाम्शन लिमिट अगर वो ओल्ड में जा रहा है, अगर वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहा है, तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है 2 lakhs, 3 lakhs एंड 5 lakhs. वो डिपेंड करता है कि
डिपेंड करता है एज पे। अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है लाइक बिलो 60 है तो 2 लाख की जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट रहेगी। एंड इफ़ ही इज़ अ सीनियर सिटीजन 3 लाख की जो है हमारी बेसिक एग्जामिशन लिमिट रहेगी। एंड इफ़ ही इज़ अ सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 से अबव एज है उसकी, तो उसकी जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 5 लाख रहेगी। नाउ इंडिविजुअल अगर ऑप्ट कर रहा है फॉर डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम, सो नाउ एज़ पर द फाइनेंस एक्ट 2025 ये लिमिट जो है वो 4 लाख हो चुकी है। ठीक है, नाउ अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट 4 लाख से एक्सीड करती है तो इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। टैक्स पे करना है नहीं पे करना है वो आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा, बट अगर ये लिमिट जो हैं वो एक्सीड हो जाती हैं तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। नाउ अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट एक्सीड नहीं हुई बट जो हमारा राइट साइड में जो थ्रेशोल्ड गिवन है वो एक्सीड हो गया, तो दोनों में से अगर एक भी चीज़ एक्सीड हो चुकी है तो हमारा रिटर्न फाइल करना इंडिविजुअल को मैंडेटरी हो जाएगा। नाउ थ्रेशोल्ड में क्या क्या पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट। डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, अगर इंडिविजुअल का डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट एक्सीड कर जाता है 50 lakhs और मोर। Second point is if a deposit in current account exceed 1 crore and is equals to 1 crore, right? एंड थर्ड पॉइंट इज़ अगर वो स्पेंड कर रहा है 2 lakhs और मोर फॉरेन ट्रैवल पे, अगर इंडिविजुअल फॉरेन ट्रैवल पे 2 lakhs स्पेंड कर सकता है देन ही हैज़ टू मैंडेटरी फाइल द रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अप टू 1 lakh और मोर है then he has to file return mandatorily. Third, next point is TDS TCS of 25,000 और more। अगर इंडिविजुअल का TDS TCS जो है वो 25,000 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, then he has to mandatory file the return। और अगर वो इंडिविजुअल सीनियर सिटीज़न है तो ये लिमिट जो है 25,000 की ये 50,000 हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ बिजनेस टर्नओवर, अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है एंड उसकी जो टर्नओवर है बिजनेस की वो ओवर 60 lakhs है, मतलब 60 lakhs से एक्सीड कर रही है, देन ही हैज़ टू मैंडेटरी फाइल द रिटर्न। रिटर्न फाइल करके बेसिकली वो डिस्क्लोज करेगा कि आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड आई हैव अ टर्नओवर ओवर 60 lakhs। then assessing then he will assess the tax and then he will pay the tax as per the procedure। now next is अगर he is earning income from profession and the income turnover of profession exceed 10 lakhs so he has to mandatory file the return and have foreign assets। अगर उसके पास फॉरेन एसेट है या फिर फॉरेन ओनरशिप है लाइक ही होल्ड समथिंग विच इज़ फॉरेन लाइक ही इज़ इंडिविजुअल इन इंडिया एंड रेजिडेंट इन इंडिया एंड इसकी कुछ एसेट्स या प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में है, तो या फिर एसेट्स नहीं है पर लीगल राइट्स है, तो वो उस इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नाउ अगर इंडिविजुअल का बेसिक एग्जामिशन लिमिट और थ्रेशोल्ड विच एवर इज़ अगर कोई सा भी इसमें से एक्सीड कर रहा है तो ही हैज़ टू मैंडेटरी फाइल द रिटर्न, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना सोर्स ऑफ इनकम एंड द अमाउंट विच ही इज़ अर्निंग। नाउ इंडिविजुअल मैंडेटरी फाइल रिटर्न, उसको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल को थोड़ा सैड फेस दिया है बिकॉज जब हमें इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि हाँ अब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर, दैट इज़ वाई। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अगर देखो रिटर्न फाइल और ITR फाइलिंग इज़ अ ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो इनकम टैक्स ITR रिटर्न इज़ अ पोर्टल जहाँ पे आप अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो ई पोर्टल पे। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ई पोर्टल ई फाइलिंग पोर्टल तो आपको वहाँ पे एक टैब मिलेगा ई फाइलिंग का, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो इनकम टैक्स फाइलिंग का जो है ऑप्शन आपको शो करेगा, वहाँ पे जाके आप अपना जो है इनकम वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर जब इंडिविजुअल को इनकम फाइल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा
सो उसको ना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब रिटर्न में वो अपनी इनकम तो डिस्क्लोज करेगा एंड सर्टेन अमाउंट जो है वो एडवांस एज अ टैक्स पे करेगा। अब वो एडवांस एज टैक्स जो पे करेगा वो अपना सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग निकालेगा कि उसको कितना पे करना है। बेसिकली जो जर्नल टर्म होता है हमारा कि अर्न इनकम इन द प्रीवियस ईयर एंड पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपको जब आपने इनकम अर्न करी है उसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ एडवांस जो है वो पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑन रीजनेबल बेसिस पे, ठीक है। एंड अगर आप रेगुलर फाइलर हो, मतलब आप रेगुलरली फाइल कर रहे हो एवरी मंथ, तो आप एवरी ईयर या एवरी मंथ जो भी है वट एवर, तो आप क्या करोगे कि आपका जो रीजनेबल सम होगा वो आइदर आपका एस्टिमेटेड टैक्स होगा, ठीक है, आइदर आपका जो आपने प्रीवियस रिटर्न में फाइल किया था अमाउंट, आप उसका उतना अमाउंट पे कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आप एक रीजनेबल सम कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड देन वो आप उसको पे कर दोगे। तो ये किस तरीके से निकलता है सेल्फ असेसमेंट जो है वो, एडवांस टैक्स जो है आपका किस तरीके से निकलता है, ठीक है। आप सेल्फ असेस करोगे, सबसे पहले आपने इनकम अर्न करा, उसमें से जो भी आपने टीडीएस है टीसीएस है वो पे कर दिया, ठीक है, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। उसके बाद आपकी आती है लायबिलिटी, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लायबिलिटी या फिर रिफंड। आप एडवांस जो टैक्स पे करोगे ना सेल्फ असेसमेंट में, उसके बाद आपको ना जो है सेल्फ लाइक एओ जो है अकाउंट असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी जो है इनकम को असेस करेगा, ठीक है। जो भी आपने इनकम अर्न किया है उस पर जितना भी आपने टैक्स पे किया है, राइट, उस पे से टीडीएस या फिर रिलीफ वगैरह को डिडक्ट करके देन आपका जो भी अमाउंट आ रहा है, या तो आपको देखो नेगेटिव आएगा तो आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब आपको वापस मिल जाएगा आपका पैसा, एंड अगर पॉजिटिव आते तो आपको पे करना पड़ेगा। जब पे करने की बात आती है तो डिपार्टमेंट जो है वो डिमांड नोटिस इशू करता है, ठीक है। सो अभी तक हमारा क्या हुआ कि इंडिविजुअल ने इनकम अर्न किया एंड अगर उसका थ्रेशोल्ड या बेसिक एग्जामिशन लिमिट एक्सीड करती है तो उसको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एंड वो जो है रिटर्न फाइल करेगा आईटीआर पोर्टल पे जाके। एंड अगर जब उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी तो उसको कुछ एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस टैक्स वो एट अ रीजनेबल बेसिस पे कर सकता है अगर वो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है, या तो प्रीवियस रिटर्न के बेसिस पे कर सकता है अगर वो रेगुलर फाइलर है तो, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसका सेल्फ असेसमेंट होगा, राइट, जिससे उसकी लाइबिलिटी निकलेगी कि आइदर ही हैज़ टू पे, मतलब डिपार्टमेंट को उसको पे करना पड़ेगा, आइदर डिपार्टमेंट उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। देन मैंने बोला कि रिटर्न में क्या है, हम डिस्क्लोज़ करते हैं अपनी इनकम को विद डिस्क्लोजिंग द इनकम डिटेल्स एंड देन सबमिट कर देते हैं टू डिपार्टमेंट को। सेक्शन 139 टू 140 जो है वो डील करता है आरओआई रिटर्न से। सबमिट नाउ जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट के पास आती है एंड डिपार्टमेंट उसकी वो प्रोसेस करने के लिए दो सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल रिटर्न है, ओनली इनकम रिटर्न है, तो उसके लिए तो CASS होता है, कंप्यूटर एडेड स्क्रूनिटी सिलेक्शन। एंड अगर TDS एंड TDS से रिलेटेड रिटर्न्स हैं तो उसके लिए होता है हमारा ट्रेसिस विच इज़ कॉल्ड TDS रिकन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। सो ये जो सिस्टम है ये दोनों ही सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारा रिटर्न जो है प्रोसेस होता है। एंड इन दोनों के ही अंदर जो है एक पैरामीटर फिक्स होता है, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस होता है उस पैरामीटर के बियॉन्ड अगर रिटर्न का जो अमाउंट है वो चला जाता है, पैरामीटर को क्रॉस कर जाता है, तो वो जो रिटर्न है वो सिलेक्ट हो जाती है फॉर स्क्रूनिटी। फॉर राइट नाउ हम जो मोर फोकस है हमारा सेस पे रहेगा क्योंकि हम नॉर्मल रिटर्न का प्रोसीजर समझ रहे हैं, ठीक है। और ट्रेसिस का हम जब हम TDS TCS चैप्टर करेंगे तब समझेंगे सेपरेटली और डिटेल में, ओके। सो हमारे पास जो है सेस जो है कंप्यूटर एडेड स्क्रूनिटी सिलेक्शन सिस्टम होते हैं जो कि नॉर्मल रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है वो पैरामीटर सेट्स होते हैं जो कि CBDT सेट करता है, ठीक है। CBDT के पास अथॉरिटी है और पावर है टू सेट दोज पैरामीटर। एंड अगर किसी भी रिटर्न में
उस पैरामीटर के बियॉन्ड जाता है ना कोई भी अमाउंट या ट्रांजैक्शन, तो वो जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ही हो जाती है स्क्रूनिटी के लिए। नाउ वाई दिस सिस्टम इज़ यूज्ड, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो एक सेंट्रल टैक्स है एंड पूरे भारत में जो है वो एक ही जो है सेंट्रली टैक्स होता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो है थाउजेंड ऑफ रिटर्न को एक असेसिंग ऑफिसर रीड करता पड़े, करता रहे एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को ईज़ी करने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। नाउ अब जो रिटर्न सिलेक्टेड होती हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसको जो है एओ जो होता है वो समरी असेसमेंट करता है। समरी असेसमेंट मीन्स कि वो चेक करता है कि हाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो रीज़नेबल है या नहीं है। अगर वो रीज़नेबल होता है तो जो हमारा असेसमेंट है वो ओवर हो जाता है यहीं पे, जो भी इंडिविजुअल का असेसमेंट था वो ओवर हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रीज़नेबल नहीं है तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो इशू करता है नोटिस टू असेसी को अंडर सेक्शन 142(1) क्लॉज 1 में। लाइक असेसिंग ऑफिसर जो है वो नोटिस इशू करके जो है इन्फॉर्मेशन मांगता है असेसी से कि वाई देयर इज़ अ डिफरेंस एंड क्यों ये अमाउंट ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, क्यों ये चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं। नाउ जो सेक्शन 142 क्लॉज 1 है इसके दो पार्ट होते हैं। सेक्शन 142(1) क्लॉज आई एंड सेक्शन 142 क्लॉज 1 क्लॉज आई, सब क्लॉज आई, राइट। सो अभी जो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन आस्क की जाती है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो नोटिस इशू करके इन्फॉर्मेशन मंगाता है कि क्यों ये जो डिफरेंस है वो आया है, तो वो है सेक्शन 142 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज सेकेंड, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नोटिस जो है इशू करता है एंड असेसी जो है हमारा उसको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। नाउ अब जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुई है, आइदर क्या हो सकता है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए, ठीक है। अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आती है, ये लैंग्वेज डिफरेंस है या फिर उसको वैल्यूएशन कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑर्डर दे सकता है स्पेशल ऑडिट के लिए, किसको, एसएससी को, ठीक है। स्पेशल ऑडिट के लिए एसएससी को ऑर्डर दे सकता है कि स्पेशल ऑडिट करवाओ अपना, एंड या तो वो एक वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकता है कि किसी भी मैटर के लिए किसी भी वैल्यू को अगर उसको नहीं समझ आ रही है, उसको लग रहा है या गलत है या फिर ओवर स्टेटेड है, वट एवर द रीज़न में बी, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकता है कि इसकी वैल्यू मुझे निकाल कर दो। और ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो 180 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करता है एओ को, ठीक है। देन ये सब चीज़ें होने के बाद, देखिए, स्पेशल अगर ऑडिट इन एसएससी ने करवा लिया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने उसकी वैल्यू निकाल के दे दी, ठीक है, तो एसएससी जो है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो रेगुलर जो है असेसमेंट स्टार्ट कर देता है अंडर सेक्शन 143 क्लॉज 3 में बाय सेंडिंग नोटिस टू असेसी। सो जो भी काम होगा वो असेसी को नोटिस दे देकर ही होगा, मतलब उसको इन्फॉर्म किया जाएगा हर चीज़ के लिए, उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट होगा मैंडेटरी जो कि रखा जाएगा एंड हर चीज़ के लिए जो है, हर कम्युनिकेशन के लिए एक नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है। ये जो रेगुलर असेसमेंट जो है होगा उसको हम स्क्रूनिटी असेसमेंट भी कहते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड सेक्शन 142 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई। यहाँ पे क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर अगर किसी भी असेसिंग ऑफिसर को डाउट है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रिटर्न नहीं फाइल करी, मतलब कि प्रीवियसली फाइल कर रहा था, अचानक से उसने फाइल नहीं करी, तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करके रिटर्न फाइल करने को भी ऑर्डर दे सकता है, किसको, असेसी को। किस केस में, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो। एंड अगर असेसी जो है वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 144 में। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है कि जो भी असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी रखनी है, या जिस तरीके से भी उसको बेस्ट लगेगा उस अकॉर्डिंग वो अपना जजमेंट दे देगा, उस अकॉर्डिंग वो अपनी जो है असेसमेंट को ओवर करेगा।
एंड ऑल्सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो अनदर केस में भी हो सकता है कि जब इंफॉर्मेशन मांगी थी असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है, इंफॉर्मेशन उसको मिल गई बट उसको समझ नहीं आ रही, अब उसने बोला है कि असेसी से बोला है कि स्पेशल ऑडिट कराओ, असेसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करा रहा, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है उसके अकाउंट्स का। या फिर वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू कराया तो अकाउंट जो है वो ओवर ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं या अंडर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो उस केस में भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का केस पॉसिबल रहेगा। नाउ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अगेंस्ट एसएससी के पास पावर है टू अपील, वो अपील कर सकता है इन डीआरसी। डीआरसी मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है इनकम टैक्स में सेपरेटली जो कंस्टिट्यूट की गई है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ असेसी। असेसी की जो भी लोअर लेवल्स की प्रॉब्लम है, असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं। नाउ असेसिंग ऑफिसर ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, अगर उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना था वो किया, या फिर उसको रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट करना था वो किया, उसके बाद वो ऑर्डर इशू करता है अंडर सेक्शन 156। 156 में डिमांड ऑर्डर होता है, लाइक उस अगर उसने स्क्रूनिटी असेसमेंट किया तो उसने अगेन जो है टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की होगी, ठीक है, या फिर रिफंड कैलकुलेट किया होगा। सो ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 तभी होता है जब लाइबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। सो ऑर्डर जो है ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 वो तभी अराइज होता है जब लाइबिलिटी अराइज होती है। लाइबिलिटी मतलब कि असेसी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, उस केस में ही जो है ऑर्डर नंबर 156 पास होता है। सो नाउ डिमांड ऑर्डर आया है, आइदर जो है असेसी जो है हमारा सी आई हैव ड्रॉ दी अपर लाइक स्माइल एंड अ सैड फेस, बिकॉज अगर असेसी हैप्पी है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड पे कर देगा एंड उसका असेसमेंट जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। बट असेसी अगर खुश नहीं है डिमांड से, जो भी डिमांड ऑर्डर आया है वो कह रहा है, लाइक उसको लगता है कि ये गलत डिमांड ऑर्डर आया हुआ है, कि ठीक है मेरी तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए थी, कि मैंने जो है वो सही टैक्स पे किया है, तो वो डिसअग्री हो गया, ठीक है। डिसअग्री हो गया तो उसके पास राइट है टू ARR। ARR मीन्स उसके पास राइट है टू अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन। अपील मतलब कि वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, जो कि हमारा DRC थी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कोई भी चेंज करा सकता है ऑर्डर में, जो डिमांड ऑर्डर आया उसके अंदर वो कोई भी चेंज करा सकता है। एंड रिवीजन मतलब उसका रीअसेसमेंट का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। नाउ बेसिकली यहाँ पे आके जो है असेसमेंट प्रोसीजर ओवर हो जाता है। अपील, रिवीजन एंड रेक्टिफिकेशन के बाद जो भी प्रोसेस है वो जो है वो असेसमेंट का प्रोसीजर होता है, जहाँ पे हमारा अपील, रेक्टिफिकेशन के जो हैं ऑर्डर पास होते रहते हैं एंड अकॉर्डिंग जिसके फेवर में आता है वो जो है वो पे करके या फिर एडजस्टमेंट वगैरह करके जो है असेसमेंट ओवर हो ही जाता है। नाउ इन फ्यूचर, नाउ फ्यूचर का मतलब मैंने यहाँ पे फ्यूचर क्यों लिखा है, नाउ सपोज कि असेसमेंट वगैरह सब क्लोज हो चुका है, अब कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कि XYZ जो असेसी है उसने कोई जो है वो ट्रांजैक्शन ओवरस्टेट की थी, या फिर कोई डिडक्शन को उसने क्लेम कर लिया था जो कि उसे क्लेम नहीं करना चाहिए था। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे उसका जो असेसमेंट है वो दोबारा ओपन हो सकता है। तो अगर डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, नाउ डिपार्टमेंट जो है वो लाइक फ़ाइन करेगा, अगर उसको कुछ भी फ़ाइन, असेसमेंट चेक करेगा, अगर उसको कुछ भी फ़ाइन नहीं होता है तो असेसमेंट इज़ ओवर। बट अगर उसको स्मॉल या बिग कुछ एरर्स मिलते हैं, अगर स्मॉल एरर है तो रीअसेसमेंट करके ओवर हो जाएगा, बट अगर बिग एरर है तो सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ सर्च एंड सीजर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त कर लिया जाता है, लेकिन आपने मूवीज़ में देखा होगा, रेड देखी होगी, सर्च एंड सीजर का मतलब बेसिकली रेड ही होता है, ठीक है। आपने रेड मूवी देखी होगी, उसमें जो प्रोसीजर अप्लाई होता है कि घर में जाके घुस के मतलब चेक करना कि कितना आपके पास वैल्यू का जो है वैल्यूएबल आइटम्स हैं, क्या क्या मतलब कैश वगैरह है, तो उस सब चीज़ों को लाइक अगर वो अनडिस्क्लोज हैं तो उसको सबको सीज़ कर लिया जाता है। सीज़ मतलब जब्त कर लिया जाता है। सो दैट्स इट फॉर दी बेसिक्स। आई होप आपको जो प्रोसीजर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। दिस I have put a lot of effort to prepare this chart.
मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ये जो चार्ट है वो प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया है आपको समझाने के लिए सिंपल वे में, एंड हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स वर्क्स, उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी जून 2026 अटेम्प्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर सपोर्ट। कीप स्टडिंग स्मार्ट। सो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेक्शन 116 एंड टू 130 कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाय बाय।